लॉजिक्स कॉन्सेप्ट. हाँ चालू करो. Okay, board is visible. Whiteboard. Anyone please reply. तो मंडे के बाद क्लास के बाद आपकी टेस्ट के बाद क्लासेस है कि नहीं है? अभी वो टाइम टेबल है ना एग्जाम का, उसमें तो लिखा है क्लास में 9:40 से. किसी क्लास में लेकिन कोई बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ. एग्जाम देने के बाद फिर किसी को मन करता है क्लास करने का? अभी बताओ. नहीं ना. तो पिछली बार तो बोला था पहले कि लेक्चर है, फिर बाद में बता दिया था कि 11 बजे बस होगी वापस आने के लिए. अब इस बार पता नहीं क्या करें. नहीं, क्योंकि दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर. आफ्टर एग्जाम everyone want to be relaxed. That is the human nature. We are totally thinking about the examination, what happened, all the things. Okay. So now see, first I am going to discuss about A star. Okay. So first I am going to discuss about A star, that is optimal solution, that gives always optimal solution. Okay. Optimal solution, that means always complete. Okay, so it gives the optimal solution and always complete. So I am going to draw the graph. So this one is I'm drawing this way. Suppose this one is drawing like a B, this one is the A, and this one is your start node. So this is a directed graph. Sometimes they will give a directed graph, sometimes they will give a non-directed graph. It may be possible. Okay. Okay, so sometimes they can give a directed graph, sometimes undirected graph, no problem. If directed graph is given, then search process automatically prescribes, that means sort, because the indirected graph you have to only explore those having a directed sign from A to B. Okay, so यहाँ पे directed graph, if someone asks you what is the benefit of directed and undirected graph, so basically if directed graph we can go for, there is a less possibility of backtracking. Okay, but in an undirected graph there is a maximum possibility of backtracking, because all the time, suppose now same thing, suppose I can see, I can change this direction as a undirected graph. Now see, if I can explore A to B one time, then again I can explore B to A one time. So that is a disadvantage. So I can put the directed graph for minimize the space in the space search. So this one is the D. Already all the things are discussed, and this one will be the C, and this will be go for the goal node G. G is the goal node, and this one is also mentioned here. This one also mentioned here like a 2. This will be the 4. This will be the 10. This will be a 1. This will be a 2. This will be the 5. This will be the 1. And suppose this one is the given as a 3. Okay, so here we have to find out, and heuristic value is the given as a S is a 5. This is a heuristic value, I know on the, and this will be the 3. This will be the 4, and D will be the 6, and this will be the 2, and by default goal value of heuristic is a 0. Okay, so I can change the color. Double circle is the goal. So I can explain, and this will be the start node. Our S will be the start node. So I can mention start, and this is the goal.
Now see, in the examination, suppose the graph is given and they did not mention the goal, so we have to search where is your heuristic value 0. Suppose your heuristic value is 0, that means that is a goal. It may be possible within a graph too many heuristic values are 0. It is not guarantee कि only one heuristic value is 0. ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी ग्राफ में बहुत सारे नोड्स ऐसे भी हों जिनकी वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है. दैट मींस ऑल आर द गोल. सो आवर एम टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि विद इन ऑल फिजिबल सॉल्यूशन उसमें से कौन सा कम है. Okay, so two words comes inside. So if you are sitting in the product based company and they will ask you what is the difference between the feasible solution and optimal solution. So we can say that the feasible solution is a set of all solution and among optimal solution is the best solution among feasible solution. मतलब आपके पास एक सेट है फिजिबल सॉल्यूशन का, उसमें आपके पास बेस्ट पाथ मिल रहा है 8, 9, 3, 2, 1. So these are the feasible solution. That means these are the possible solution we can get through traversal of BFS, DFS or S-star. But among all, which one is the optimal? Which one is the optimal? That means only one optimal. That means in feasible solution may have one or more than one, but optimal solution always one. Okay, very clear? This is clear? Regarding feasible and optimal solution regarding goal node? Online? Please, anyone reply? Okay, no one interested to listen all the things. Okay, no problem. So here, so I will start from the S node. So I am going to explore. So from S node, I have to reach A. I have to reach A. Then I have to reach goal node G. Yes or no? There is a two possibility. I am going to now here. I am going to calculate this one from f of n. So first I am calculating f of n for this one, then this one, and then this one. Yes or no? Possible, na? So now here I am calculating f of n is f of h of a plus g of a. Yes or no? फिर यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसेस से h of g प्लस g of g, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे f of s प्लस नो h of s प्लस g of s. So h is the heuristic value that will call the estimate cost of s to reaching the goal. Okay, कि भाई इतने मिनिमम कॉस्ट में हम गोल तक पहुंच सकते हैं, ये s बोल रहा है. दैट मींस द ह्यूरिस्टिक वैल्यू है. So I am going to write, so this will become 5 plus 0, that means 5. Yes or no? Sorry, I am going to change my color. So this will be the 5. So इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे तो हमारे पास सिलेक्शन करने का मौका ही नहीं मिला, तो एक वैल्यू है तो नो प्रॉब्लम. तो f of n value of candidate of A is 5. Now I am going to calculate this one, f of a. So what is the h of A 3, and what is the cost from start node to reaching the goal? Reaching the node A. So what is the cost? 1. Yes. So I am going to add. So this will be give 4. 4. Now here I am calculating h of g, heuristic value of node of goal 0, and from goal to this, how much cost? Actual 10. That is the actual cost. That means called h of n 10. So now see these things. Now we can get a one feasible solution 10, not optimal solution, but we can get a one feasible solution 10. So that means I already told you that कि we have a many feasible solution. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे गोल मिल गया तो मैं स्टॉप कर जाऊंगा. ओके, इसका मतलब ये नहीं हुआ. ए स्टार हमेशा क्या करता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है. आपको तो फर्स्ट टाइम में ही गोल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉप कर दिया. अब मुझे सर्च करना है क्या हम 10 से कम गोल ला सकते हैं. That means we can next search for the next feasible solution. So I am going to choose A. Otherwise, if I can go, suppose this is the goal. Okay, no problem. Then we have searched which one is the minimum. So again, A is the minimum. So I am going to explore A. Okay, समझ में आ गया? हम explore A को करेंगे again. Okay, so that is the process. We are going to explore again A, and through A we can search a goal.
Suppose I can get a goal through A is a more than 10. So that is not optimal solution. And then we can say that the minimum path from reaching the goal is S to S. Clear? So that is the process in A star we can follow. Is it clear how to calculate f of A value? That means function value in A star. क्लियर हुआ? ओके सो देखिए आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई ए स्टार, आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस हाउ कैन दे फ्रेम द क्वेश्चन कि हाउ कैन गेट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन थ्रू ए स्टार, जस्टिफाई योर आंसर. दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम and you have to calculate this one and then you have to find out the optimum. तो आपसे मतलब एग्जामिनर ने अपनी ग्राफ देने की जगह उसने ग्राफ नहीं दिया, उसने एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ए स्टार होता क्या है और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे देता है, आप इसको जस्टिफाई करो. तो जस्टिफाई करने के लिए आपको तो ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस ग्राफ को याद करो, आप कोई भी अपने मन से ड्रॉ कर सकते हो. दैट मीन्स आपको ड्रॉ कैसे करना है. आप सपोज मुझे ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी छोड़ो ये इधर कर लेते हैं. सपोज सेम टाइप का मुझे क्वेश्चन आ गया और मुझे बनाना होगा, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, कोई एक रैंडम ग्राफ बना लो. सो मैंने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया इस तरह का. इट मे बी डायरेक्टेड और मे बी अनडायरेक्टेड. ओके आपने ये ग्राफ बना लिया और इसका नाम आपने से रख दो ए बी सी डी ई एफ. दैट इज ऑल द इमेजिनेशन. आपको इमेजिन करना है, दैट इज द एआई, तभी आप एआई समझ पाओगे. और उसके बाद इसका आप कॉस्ट पाथ कुछ भी रख दो, 1 2 1 2 1 2 1 1. आपने ये रख दिया अपने लिए. देखो सुविधा के लिए हमें करना है, सब कुछ आप ही के हाथ में है विद द हेल्प ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी. अब यहाँ पे 10 5 भी ले सकते हो, 2 3 भी ले सकते हैं, 0 तो हो नहीं सकता 5 कॉस्ट. सो मैंने ये सिंपल लिया कि माय कैलकुलेशन शुड बी इजी, अदरवाइज कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. और ह्यूरिस्टिक वैल्यू सपोज मैंने सेट कर दिया कि भाई मेरा ई हमारा फाइनल गोल है. हमने क्या सेट किया, ई हमारा फाइनल गोल है. आपको हर चीज मेंशन करना होगा. और हमने सेट कर दिया कि हमारा ए क्या है, स्टार्ट नोड. सो आपको ये सब मेंशन करना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड दिस विल द गोल. ओके सो आफ्टर दैट आप सेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. सपोज इसका मैंने 5 कर दिया, इसका 2 कर दिया, इसका 1 कर दिया, इसका 1, इसका 0, इसका हमने 4 कर दिया, हो गया. So on the basis of we have to calculate the A star. So this is the example. We have to take example by yourself and then prove that कि A star is optimal or not. So आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा कि भाई A star ऑप्टिमल है या ना, ऑप्टिमल और नॉट. देन है तो वाई कैसे, तो शो बाई दिस ग्राफ और शो बाई दिस ग्राफ, इस टू ग्राफ. So this is the process how to write your questions answer. Okay, so marks depends upon your presentation also. आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हो, मार्क्स उस पर डिपेंड करता है. अगर आपको ये समझना है तो यू कैन गो एंड सर्च यूपीएससी एग्जामिनेशन पेपर्स. आप जो यूपीएससी में जो टॉप करते हैं उनका देखना पेपर्स लिखने का तरीका, तभी दे विल बी टॉप. एक तरीका होता है. क्लियर तो हर कोई करता है. सपोज 500 रैंक वाले भी क्लियर हुए, लेकिन रैंक 1 जिसकी है उसके आंसर लिखने के तरीकों को देखिए. तो दैट्स वाई दैट इज अ रैंक 1. ओके सो हर चीज मैटर करता है आपकी लाइफ में कि आप अपने इवन इफ आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जीते हो, दैट इज ऑल्सो मैटर. विच पोस्ट यू आर डिजर्व, दैट इज ऑल्सो मैटर. एंड हाउ टू मेंटेन दैट पोस्ट, उस पोस्ट की डिग्निटी को कैसे मेंटेन करते हो ये भी मैटर करता है. ओके सपोज आप किसी कॉलेज के वाइस चेयरमैन है और आप एक बिहेव कीजिएगा एक नॉर्मल पीपल की तरह, तो दैट इज गुड और बैड, बताओ. अगर आप किसी के वाइस चेयरमैन हो किसी कॉलेज के और एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, सबसे जैसे मन कर रहा है वैसे बात कर रहे हो, जैसे जहां मन कर रहा हो वहां घूम रहे हो, पॉसिबल है नहीं ना. तो हर चीज का एक तरीका होता है. दैट इज मीन मेंटेन द स्ट्रक्चर. सो फॉर राइटिंग द आंसर वी ऑल्सो मेंटेन द स्ट्रक्चर. वी शुड ऑल्सो मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग. अगर आपने स्टार्ट गोल नहीं लिया और आपने अपने ग्राफ में स्टार्ट नोड और गोल नोड नहीं बताया, तो एग्जामिनर कैसे समझेगा. वो आपको दे विल हैव
चांस टू कट योर मार्क्स। वो बोलेगा कि आप तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, आप यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन आपने तो मेंशन नहीं किया, बोला कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया सब कुछ। तो एग्जामिनर पूछा कि आप यहाँ से क्यों स्टार्ट किए, जस्टिफिकेशन चाहिए ना। अगर आपने ये पहले मेंशन कर दिया दैट इज गुड कि भाई मेरा यही स्टार्ट नोड है और यही गोल नोड है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रैंडम चीजें नहीं करनी है। वट एवर यू आर राइटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, सॉरी इन आंसर स्क्रिप्ट, यू शुड वैलिड प्रूफ, तब आप उसे लिखो। चलो, okay, clear how A star, then we can switch for the and A and or AO star. Okay, that means and or graph. Now see, Sir, is there possibility to get more than one optimal solution? किसमें किसमें? Optimal in A star. No, no, not more than one not more than one. Only we can get only one optimal solution. That's why na A star is a optimal solution. देखिए, Actually, sir, in this graph, if we start ओके with ओके, A, हाँ नहीं नहीं ओके, सो सपोज मैंने ये ग्राफ लिया, इसमें मोर देन वन आ गया, तो दैट इज वट एवर आई एम टेकिंग द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, दैट इज नॉट अ गुड ह्यूरिस्टिक। ओके, नॉट अ गुड ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यस या नो? yes, sir. तो बस आपको, तो इसके लिए आपको गुड ह्यूरिस्टिक के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा है, आप इसको कर लेना चेक, ओवर एस्टिमेट, सॉरी अंडर एस्टिमेट। अगर आप इसको फॉलो करके बनाओगे ग्राफ, तो दैट इज ऑलवेज गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। इज इट क्लियर सागर? Yes, sir. हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मैंने वो तो रैंडम लिया, वो आपको ऐसे नहीं करना है, आप जब भी जैसे भी लो, बस आपको प्रूफ करना है। सपोज यू आर गेटिंग मोर देन वन सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, इन दैट केस देन यू कैन चेंज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू और चेंज द वेट ऑफ दिस ग्राफ। आप उसके एक्चुअल पाथ को चेंज कर दो, तो अब चेंज हो जाएगी सब कुछ। सो नाउ आप ऑप्टिमल सोल्यूशन इसलिए मिल रहा होगा इसका मोर देन, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉस्ट को एक जैसा रख दिया है ये, ठीक है, इसलिए आपको मिल रहा होगा। चलो, सो हम लोग ए स्टार की चला, सॉरी इसकी तरफ चलते हैं, किधर, एंड एओ स्टार। सो देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट एओ स्टार, दैट मीन्स and or graph, that is called and or graph. Okay, and or graph, that means we have a possibility, where is the example, this standard example that is so now see, a graph is given like this one, A, then this will be the also directed graph, then B, then this will be the, here I am creating C, and this will be the D. Okay, and this is the symbol of and, this is the symbol of and. Okay, so this is the symbol of and, so don't be confused. Then after that I am going to explore, that is a G, ये हम लोग क्लास में किए हैं हम लोग, this will be the H, and this will be the I, sorry, this will be the I. Okay, and this will be the F, and this will be the E, and this will be the F, and this will be the also and. Okay, so ये हमारे पास possibility है. So here we have to also follow the one condition, like we are calculating f of n is equal to g of n plus h of n. But यहाँ पर when we are calculating f of n value for AO star, that means we can take g of n to reaching the node from that node to the another. Okay, हमारी जो g of n की वैल्यू होगी वो start node to the that node नहीं होगी, that where I can present that position, then we have to calculate g of n. That means अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ g of n वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचनी, ना कि वहां से यहाँ तक आना, ये क्लियर होना चाहिए. Okay, so I am going to put this one value, age cost. So age cost I am going to put 1 1. I am putting all are 1. Okay, all are 1. क्या बोले? F दो बार है. नीचे और D के नीचे. ओके ओके,
सी के नीचे एफ, इसे हम लोग कुछ और कर देते हैं, कुछ भी कर दो ना, क्यू कर दो, ठीक है। अब देखो, सो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। सो यहाँ पर आपको कहीं पे कुछ नहीं दिया हुआ है, आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू में भी दिए रहेगी ये सब। द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए इज नॉट गिवन, दिस वन इज गिवन एज 6, this one is given as a how much, 5, this one is a 5, this one will be the 7, the h will be the 7, and this one will be how much given, 1, this will be the 4, this will be the 4, and this will be the 10, no 10 इसका मैंने कितना लिखा था ओरिजिनल वाले में, this will be the 6 3 and c will be the 12, c will be the 12 and this one will be the 1, okay, this will be the 1 and suppose this will be the 10, no problem, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सो देखो यहां पर इस ग्राफ है and then we have to apply the AOS star. So our aim to get the optimal solution of this graph, of the given graph. Suppose I can follow which one path to get the optimal solution. हो सकता है आपका पाथ A, D और E हो। यहाँ पर कोई गोल नहीं है बट स्टार्ट नोड है। हमें पता करना है कि भाई अगर हम ट्रैवल करते हैं, कोई भी जाते हैं अप टू द लीफ नोड, वेयर द लीफ नोड इज एंडिंग, सो व्हिच वन इज द ऑप्टिमल, कौन सा ऑप्टिमल है, हमें कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए टू रीचिंग सम अदर गोल्स। ओके, सो जितने भी है कुछ भी गोल्स हो सकते हैं, ये भी गोल हो सकता है, ये भी गोल, ये भी गोल हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग एक जनरल केस के लेके बात कर रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल पाथ, कि किस पाथ से हमें कॉस्ट सबसे मिनिमम मिलेगा। नो गोल टू अचीव। ओके, नाउ सी, सो सेम प्रोसेस यू अप्लाई अगेन। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एफ ऑफ एन। सो एफ ऑफ एन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, सो एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन। ओके, सो नाउ सी, व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एफ ऑफ ए, सो आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इसकी क्या है, यहां पर ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हमें ये एंड ग्राफ है, सो आई कंक्लूड टू कैलकुलेट बोथ एट अ सेम टाइम। सो 6 + 2, h of n value I'm calculating, 6 + 12, that means the 18, and the path to reach from A to B and A to C is 1 + 1, that is 2. That means 2. So it will gives 20. Is it clear? Now, so my aim is, suppose I can start from A, so it will give the that is the estimated cost to 20. मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम A को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें लीफ नोड तक जाने के लिए कितनी एस्टिमेट कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम 20 होनी चाहिए। अगर 20 से कम हुआ दैट इज कूल, 20 से ज्यादा हुआ तो उसे हम लोग नहीं करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस वन। व्हाट इज द एफ ऑफ एन वैल्यू फॉर दिस वन? एफ ऑफ डी वैल्यू आई एम कैलकुलेटिंग 10 + 1, that means 11. Okay, so which one is the minimum? 20 and 11. 11. So this 11 cost will be assigned to the A. हम assign to the A कर देंगे, मतलब हमारा अगर A से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू फ्रॉम D तक जाने के लिए कितना होना चाहिए? 11. So I will be assigned to the this 11 value of this one. That means 11 हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो गया A का, तो भाई 11 हो गया। So no need to explore this one, B and C. We can stop. Then I can go further that side. I can explore this side. This is the minimum, na? So again I am calculating this side. We have to calculate bottom of node, then explore top. ठीक है, वैसे करना है। So now 4 + 4, we are calculating 8. That is the AND operation. 4 + 4, 8 + 1 + 1, 2. That means 10. So this will be again 10. No problem. So now this 10. Now this will be told that if I reach that D and then we can go for the solution, we can get the optimal solution of 10 minimum cost. So this will be the minimum cost, no problem. Okay, now 10 plus this one 11, no problem. So if I can travel this side, so we can get 10, but this value is less than 10. 11 से तो वो 10 लेस है ना, so this value we automatically transfer to the 10 here and this will be discarded. समझा क्या? मतलब अगर हम A to यहां तक पहुंचना है तो मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा? 10 लग सकता है, उससे कम नहीं लगेगा। 10 से ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? हर बार हम ट्रांसफर करेंगे अपनी वैल्यू को टॉप में। अब देखो
अब तो ये हमारा गोल की रुक गया एंड ए एंड सॉरी एओएस स्टार इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमने तो बस एक ही एक्सप्लोर किया, हमने तो इसकी बात की नहीं। अब देखो हो सकता है कि इफ आई कैन एक्सप्लोर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वन मे बी गेट लेस देन 10, पॉसिबल है ना। सो दैट्स व्हाई एओ स्टार इज नॉट अ ऑप्टिमल, नॉट अ कंप्लीट। क्लियर, दैट्स व्हाई। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हाउ टू एक्सप्लेन कि एओ स्टार इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। तो आपको कोई एग्जांपल लेना होगा, एसएसओ करना होगा, फिर आपको लैंग्वेज लिखना होगा। यू कैन गेट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन 10 but there is a possibility if I can explore, okay wait, okay, so there is a possibility now we can get explore B and C ADH less than 10. So that's why this is not a complete solution. Same process we can apply for the left hand side. Again I am calculating both 16 plus 12 8 18 plus 20, no need to update, so 20 no problem, so I can explore this one. तो यहाँ पर एक्सप्लोर करो, तो इससे पहले एक्सप्लोर करने से पहले यहाँ एक्सप्लोर करना होगा, तभी तो 1 plus 1 2 अपडेट 2, क्लियर। नाउ 2 plus 3 अपडेट 3, now here 7 plus 8 no need to update, then automatically come here 1 plus 1 2, now update, ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 through 2 5 7 less than 10. Yes. So if I can explore this side left hand side, then we can get a 7. So we have to start from A, and if you want to reach the leaf node, that is the minimum cost is 7. क्या क्या? Okay. So इस तरह हमारा A स्टार काम करता है. Is it clear? Sir, why we had overwritten 11 instead of like 10? 10. Instead of 11, we writing 10. Yeah. Yes or no? Yeah, okay. So what Now is see, the reason? that is the reason. Suppose if I can follow that one, suppose I am the position of D. So आपसे D ये बोलता है कि I will take you the goal position of the minimum cost 10. Yes or no? आपसे ये बोल रहा है, बट ये बोल रहा है कि भाई हम तो ले सकते हैं 11 में। तो इसलिए इस अगर हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आई नीड टू ट्रांसफर द आवर ह्यूरिस्टिक वैल्यू टू द ए, then it is possible to travel the path A to D and D to E or A to D and D to Q. Okay, तो हमें किसकी वैल्यू माननी होगी, इसकी ना मिनिमम कॉस्ट वैल्यू माननी होगी, तभी तो हम इस पाथ को फॉलो कर पाएंगे। यस या नो सागर? Yes, sir. Yes, sir. So do it no it to consider actual value between A to D? Can you repeat? Yes, sir. Here you had taken 10 as a heuristic value of A. So for that you didn't consider actual value between A to D, which is 1. That is the actual value. Yes. So now see. So do it. No need to edit over there. No need to edit this one. Only we transfer the heuristic value. सागर, Okay. हमें सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ट्रांसफर करनी है, एक्चुअल कॉस्ट को तो आप टच नहीं कर सकते। हमेशा एस्टिमेट कॉस्ट को आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें एक्चुअल कॉस्ट की बात करें ए से ई और क्यू पहुंचने का 1 + 2 3, एक्चुअल कॉस्ट तो 3 आ रहा है ना 3 आ रहा है। तो देखो, लेकिन एस्टिमेट कॉस्ट तो कुछ और आ रहा है। तो एक्चुअल कॉस्ट को लोग चेंज नहीं कर सकते रियल लाइफ में। जैसे मान लो यहाँ से मुझे सिटी जाना है, तो एक्चुअल कॉस्ट सिटी का डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, तो क्या हम 10 किलोमीटर को चेंज कर सकते हैं? लेकिन हम एस्टिमेट कॉस्ट को तो चेंज कर सकते हैं। अब 10 को तुम 8 बना दो, 10 को 5 बना दो, 10 को 7 बना दो, 10 को तुम 7.8 बना दो, दैट इज एस्टिमेट कॉस्ट। उससे हम चेंज कर सकते, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते। और मान लो कि तुमने बोला, तुम लोग 2 दोस्त हो, तो एक ने बोला कि भाई मैं तुम्हें तो यहाँ से 10 किलोमीटर है तो 9.5 किलोमीटर में पहुंचा दूंगा। मतलब अगर मेरे साथ तुम जाते हो तो यू कैन ट्रैवल ओनली 9.5, चलो ठीक है। लेकिन एक ने बोला कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ जाते हो तो आई कैन गो विथ 8.5। तो किसको आप पसंद करोगे? 8.5 को। आपने उसी 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 8.5 में कवर करना। सो दैट इज द यूएस सिस्टम। आपकी अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी ना।
9 से 9.5 से क्या हो गई 8.5. दैट इज द आंसर. क्या क्या? Okay, so that is the A star and OA star, and don't be. Okay, so Ria, we are not considering this goal because I am not interested to take a goal here. मैंने एक general example लिया है. If you want to put a goal here, suppose आपने अगर मान लो कि गोल यहाँ लिया, suppose my goal is this one. आपका गोल H है, हमने suppose लिया, तो is it possible to get a A star goal? Not possible ना, क्योंकि वो तो हमारा राइट हैंड साइड में एक्सप्लोर कर गया, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं. इसीलिए मैंने एक जनरल तरीके से बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट अ गोल और देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू गेट अ गोल. ओके रिया? रिया, ओके. सो अगर आप सेम एग्जांपल को अगर प्रूफ करना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो आप गोल ले भी सकते हो, गोल नहीं भी ले सकते हो. देखो मेन हमारा एआई में क्या होता है, एआई हमारा क्या है, सुपर सेट है एमएल का. एमएल इज अ सबसेट and deep learning is a subset of ML and ML is a subset of AI. That means AI is a superset. AI कभी बात नहीं करता efficiency का. AI always talk about the solution, not optimal solution, not that is the correct or not. AI को इससे मतलब नहीं है. हम गोल अचीव कर रहे हैं कि नहीं, that is okay. नहीं अचीव कर रहे हैं तभी okay, अचीव कर रहे हैं तभी okay. लेकिन जब हम मशीन लर्निंग का बात करते हैं तो वहां पर हमारा गोल मैटर करता है. जब गोल रहेगा तभी हमारा मॉडल सक्सेसफुल रहेगा. डीप लर्निंग में करेंगे तो और मैटर करता है. बस यही फर्क है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई में. सो एवरीवन इंटरेस्टेड टू आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये पूछते हैं. चलो, सो फॉर टुडे दैट इज एनफ. ओके, सो विवेक यू कैन सेंड मी द अटेंडेंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.